Hello students, good morning. Welcome to Q&A class. My name is Dr. Meghna Garg and I am biology faculty at Q&A. Students, am I audible? Can you hear my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you everyone for responding. Just wait. Okay, so we are quickly going to finish this chapter, which is the fundamental unit of life. Okay, so we were on to the last part of this particular chapter, which was cell division. And in cell division, we have already covered mitosis. I hope all of you are thorough with the concept of mitosis, or do you have any doubts regarding that? Any doubts regarding mitosis? Anyone? We will also take a quick recap. Okay, a quick recap also we will take. No doubts, ma'am. No doubts. Okay, so now for today's attending for today's class, what are the prerequisites? So obviously now you should be thorough with all the cell organelles, nucleus, and also mitosis. Today we are going to finish this cell division. So that's exactly what we are going to read in today's class, which is cell division and particularly meiosis. So now let's quickly begin with the recap of what we had studied in previous class, which was mitosis. So mitosis is basically a type of which division? Was it an equational division or was it a reductional division? कौन से type का division बताया था मैंने? बताओ. Ma'am, it's an equational division. Okay, very good. Why? Anybody else apart from Arush? Wait, Arush. Arnav, Laksh, why mitosis is called as an equational division? Why? Yes? Arnav, yes? Answer it. Ma'am, because the cell's nucleus equally divides into the two daughter cells. No. Their chromosomes divide into two daughter cells. Chromosomes would always be dividing into two daughter cells or into four daughter cells, but something else. You're not coming to a specific term. Laksh, why is it called as an equational division? Why this is called as an equational division? Mitosis, why? Ane, Arsh, why mitosis is called as an equational division? Quickly, everyone. Okay, Arush. Yes, please respond. Ma'am, it maintains the equally in it maintains the chromosomes equally in the parent cell and in the daughter cell. Very good. So what happens that why is it called as an equational division? Why? Because in previous class I had told you about the terms like diploid, ploidy level, number of chromosomes. Okay. So what happens particularly that in mitosis, if the parent cell, okay, if the parent cell is diploid, that means by diploid we means that it has two copies of each chromosome. So likewise that I had told you, this is chromosome number 1, this is chromosome number 2's 2 copy. Likewise this you have total 23 chromosomes copy, and that's why we humans have total 46 types of 46 chromosomes present in our one cell. Okay, so if the parent cell is diploid, then after this parent cell divides into two daughter cells. So this is daughter cell 1 and this is daughter cell 2. In both the daughter cells, the chromosome number would remain same. That means these daughter cells would also be diploid. Okay, so please remember this, that the chromosome number is maintained constant. Okay, the ploidy level is maintained constant in the mitosis, and that's why it is called as equational division. Okay, now in previous class I had told you this, that particularly mitosis, okay, the main aim of mitosis is that it has to convert one parent cell into two daughter cells. Okay, now I had told you the division of the chromosomes in previous class. I had given you a well labeled diagram also. I hope everybody has drawn that in their respective notebooks. I think everybody has it in their notebooks. Everyone? Yes, ma'am. Yes? Yes, Okay. ma'am.
यस, सो माइटोसिस के बारे में आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में नहीं बताया था, दैट वाज कि दीज माइटोसिस और व्हेनेवर अ सेल डिवाइड्स, ओके, इट गोज थ्रू सर्टेन स्टेजेस. सो द फर्स्ट स्टेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज प्रोफेज. Okay, so what happens during the prophase stage? So I will now link the entire, we will now link the entire chromosome distribution जो हमने previous class में पढ़ा था with this particular terminologies. Okay, प्रोफेज में क्या होता है, देखो ये सेल था, इस सेल का ये न्यूक्लियस था, ठीक है, इस सेल का ये न्यूक्लियस था और इस न्यूक्लियस के अंदर अब ऐसे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे. ये क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज थी, ये क्रोमोसोम नंबर 2 की, क्रोमोसोम नंबर 3 की, लाइकवाइज दैट. ठीक है, और अब आप रिकॉल करो, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कोई भी सेल को डिवाइड करना होता है उस टाइम पे वो इन कॉपीज की भी और कॉपी बना के रखता है. ठीक है, तो यानी अब अगर आप इस सेल के अंदर का सिनेरियो देखोगे तो यहां पर आपको एग्जैक्टली कैसा दिख रहा होगा. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ नाउ ड्रॉइंग द एंटायर 23 क्रोमोसोम्स, क्योंकि 23 एग्जैक्टली पूरे क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं आपको केवल एक क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन से, उसके डिवीजन से, उसके सेपरेशन से दिखा रही हूँ. ठीक है, बाकी 23 क्रोमोसोम्स भी एग्जैक्टली वही सेम फॉलो करेंगे. समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या बात बोल रही हूँ? यस मैम. ठीक है, चलो मैं 2 क्रोमोसोम से यहाँ Yes, पर ma'am. दिखा देती हूँ. ठीक है, तो देखो क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज तो ऑलरेडी प्रेजेंट थी ही, और क्रोमोसोम नंबर 2 की भी 2 कॉपीज ऑलरेडी प्रेजेंट थी. लेकिन अब आप रिकॉल करो, मैंने बताया था कि जब किसी सेल को सेल डिवीजन में एंटर करना होता है तो वो एक एक और एडिशनल कॉपी बना लेता है. तो यहाँ पर देखो क्रोमोसोम नंबर 1 की अब इन शॉर्ट टोटल कितनी हो गई, क्रोमोसोम नंबर 1 की, और ऑन एन एवरेज देखी जाए क्रोमोसोम नंबर 1 की, तो यहाँ पर टोटल 4 प्रेजेंट है. वेट, ठीक है, इस तरीके से 4 प्रेजेंट है. सिमिलरली ये क्रोमोसोम नंबर 1 थे, क्रोमोसोम नंबर 2 में भी सेम ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, इस तरीके से दीज आर क्रोमोसोम नंबर 2. यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, अब विजिबल है ना ये आपको कि यहाँ पे इलैबोरेट थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं? नो मैम, इट्स विजिबल? विजिबल. ठीक है, ये थी प्रोफेज स्टेज. अब प्रोफेज स्टेज में सबसे पहले क्या होता है, जो ये न्यूक्लियर एनवेलप होता है ये ब्रेक डाउन करना शुरू कर जाता है. ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस पार्ट पर्टिकुलरली द न्यूक्लियर एनवेलप इट बिगिंस टू ब्रेक. ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है ब्रेक करने लग जाता है. अब ब्रेक करने लग जाएगा और जो ये क्रोमोसोम्स है ये बहुत अच्छे से विजिबल होने लग जाते हैं. ठीक है, द क्रोमोसोम्स दे आर विजिबल ड्यूरिंग दिस स्टेज. विजिबल से मतलब है कि उनकी फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है देन इट हैज डीएनए प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लूज थ्रेड लाइक मटेरियल व्हिच इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन. लेकिन अब वो धीरे धीरे अपने आप को कंडेंस करके क्रोमोसोम की फॉर्म में लेकर के आने लग जाता है. ठीक है, ये थी प्रोफेज स्टेज. तो प्रोफेज स्टेज के टाइम पे अब क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो इस तरीके से धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करने लग जाता है. द न्यूक्लियर एनवेलप it begins to disintegrate. Now what will happen? Now this will enter into the second stage which is called as your metaphase stage. ठीक है, now the second stage is called as your metaphasic stage. अब metaphase stage में क्या होता है, देखो अब यहां पर मैंने आपको अपने प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन एनकाउंटर किया था. ठीक है, अबाउट दी स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, क्या है, इन क्रोमोसोम्स को डिवाइड होना है बिटवीन द 2 डॉटर सेल्स. दीज क्रोमोसोम्स दे हैव टू बी डिवाइडेड इनटू द 2 डॉटर सेल्स. अब इनके डॉटर सेल्स में सेपरेशन होने के लिए कोई फोर्स तो चाहिए, कोई मेथड तो चाहिए. सो व्हाट विल हैपन नाउ, in the cell there are specialized cell organelles. Those cell organelles they are called as centrioles. ठीक है, सेंट्रियोल. इसी तरीके से यहां पर भी these are centrioles. ठीक है, सेंट्रियोल्स भी आपको कुछ बुक्स में देखने के लिए मिल सकता है या फिर आपको सेंट्रोजोम्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं. ठीक है, कंफ्यूजन मत लेके आना.
ठीक है, सेंट्रियोल्स भी लिखा मिल सकता है, सेंट्रोजोम भी लिखा मिल सकता है। हायर क्लासेस में मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स कैसे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी के लिए आप ये ध्यान में रख लेना। यहां से क्या होता है ना बच्चों, यहां से इस तरीके से कुछ फाइबर्स का ओरिजिनेशन होता है फ्रॉम दी सेंट्रियोल्स। दीज फाइबर्स आर कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स। इन्हीं फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स जाकर के अटैच हो जाते हैं टू द क्रोमोसोम्स। अब ये जो क्रोमोसोम्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहे थे, नाउ दीज क्रोमोसोम्स विल बी अलाइंड एट द सेंटर। ये क्रोमोसोम सारे सेंटर में आकर के अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 1 की था, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 के भी 2 कॉपीज में इस तरीके से दिखाऊंगी। फिर ऐसे क्रोमोसोम नंबर 2 की, एवरीबडी इज ड्रॉइंग इट विद मी। आप लोग ड्रॉ कर रहे हो ना इसे? स्टूडेंट्स, आर यू ड्रॉइंग इट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, in metaphase, the outermost boundary is of which? This is the plasma membrane of the cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरुष अभी ये सेल की। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज डिसॉल्व्ड और अब Okay, क्या ma'am. हो रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट है। ओके आरुष, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, Right. आप देखो यहां से अब स्पिंडल फाइबर्स का आप रोल देखना, आप लोग अब बेटर समझ पाओगे। देखो ये एक स्पिंडल फाइबर यहाँ पर इससे अटैच होगा, इससे अटैच होगा, इससे अटैच होगा। सिमिलरली यहाँ वाला एक स्पिंडल फाइबर्स जो है वो देखो किस तरीके से अटैच हो रहे हैं, यहाँ से रेड रेड वाली कॉपीज से अटैच हो रहे हैं, लाइकवाइज दिस ऊपर वाले ग्रीन कॉपी से अटैच हो गए। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेज आती है वो होती है एनाफेज स्टेज। ठीक है, तो मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर अलाइंड, क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड at the equator of the cell, equator, the central plate of the cell. Okay, so chromosomes, they are aligned at the equator of the cell. ठीक है, now what will happen, finally will come the third phase which is anaphase. Now in anaphase what will happen, see अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे ये स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऊपर वाले ऊपर की तरफ में पुल करेंगे और नीचे वाले नीचे की तरफ में पुल करेंगे। सो वंस दिस हैपेंस, अब आप ऑटोमेटिकली गेस कर सकते हो क्या हो रहा होगा, that now the chromosomes will be separated and they will be moved towards the opposite poles। यहाँ पर क्लैरिटी के लिए मैं वापस से क्रोमोसोम नंबर मार्क कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रहे। ये क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज थी और उनके भी रेप्लिकेटेड पार्ट्स थे, क्रोमोसोम नंबर 2 की 2 कॉपीज थी और ये उनके रेप्लिकेटेड पार्ट्स ग्रीन में प्रेजेंट थे। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनली क्या होगा, ये जो सेंट्रियोल्स हैं, अब इन सेंट्रियोल्स से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो अभी ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल्स पे मूव करने लगेंगे। ठीक है, नाउ दे विल स्टार्ट टू गो टू दी अपोजिट पोल्स। तो पहले मैं यहाँ पर रेड वाली कॉपीज बना दे रही हूँ। ठीक है, एंड नाउ द ग्रीन कॉपीज दे विल गो टू डिफरेंट सेल। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज थी, ये क्रोमोसोम नंबर 2 की, इसी तरीके से ये क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज थी और ये क्रोमोसोम नंबर 2 की। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग पर्टिकुलरली, दी क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। यहां तक सबको समझ में आ गया? क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am, 1 minute. ओके, अदिति को भी क्लियर है, आरुष को भी क्लियर है, अर्श, अनय, रुद्र, लक्ष्य, Yes, ma'am. अर्णव, Clear है. ठीक है, तो अब ये अपोजिट पोल्स पे मूव करने लग जा रहे हैं। और अब फाइनली क्या होगा, द फोर्थ फेज विल कम विच इज कॉल्ड एज द टीलोफेज स्टेज।
टेलोफेज स्टेज, फाइनल स्टेज, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन फाइनली, अब देखो यहाँ पर जो हमारा पर्पस था कि जो एक सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए अलोंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पर देखो क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी हो गया, अब बस इन क्रोमोसोम्स के डिस्ट्रीब्यूशन को वापस से न्यूक्लियस में डालना है और वापस से एक पूरी कंप्लीट सेल में इसको भेजना है, डिवाइड करना है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पर इस तरीके से देखो क्रोमोसोम नंबर 1, अब मैं इसको बजाय हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल दिखा रही हूँ, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज हो गई थी और ये क्रोमोसोम नंबर 2 की 2 कॉपीज हो गई थी। ऐसे ही आप ऑल 23 क्रोमोसोम्स का डिवीजन इसी तरीके से होता है, मैंने केवल आपको 2 क्रोमोसोम से दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन अपोजिट एंड पे अब जो क्रोमोसोम नंबर 1 की कॉपीज थी वो 2 आ गई और क्रोमोसोम नंबर 2 की भी 2 कॉपीज आ गई, ठीक है। अब फाइनली व्हाट विल हैपन नाउ ड्यूरिंग द टेलोफेज स्टेज, अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके आसपास बननी शुरू हो जाएगी। सो नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल अगेन गेट फॉर्म्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरीके से इनके आसपास बन जाएगी एंड नाउ दिस सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ में धीरे धीरे एक्सटेंड होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे और डीपन होती चली जाएगी। लाइकवाइज दिस, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ में ऐसे ऐसे और धीरे 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 डीपन होती चली जानी शुरू हो रही है, यानी कि ये विद टाइम क्या करेगी सेल मेम्ब्रेन, ये इतनी, इसका जो ये फरो है वो इतना डीप होने लग जाएगा अंदर इन्वेजिनेशन कि फाइनली ये एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट व्हाट, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अगेन 2 डॉटर सेल्स फ्रॉम हेयर। तो अब रादर देन दिस ड्रॉइंग इट लाइक दिस, अब मैं इसको क्या दिखा सकती हूँ, ठीक है, इस तरीके से करके, ठीक है, विद टाइम, और ये इस तरीके से यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। सो दिस इज डॉटर सेल 1 एंड दिस इज डॉटर सेल 2, ठीक है। यहां पर देखो क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज, क्रोमोसोम नंबर 2 की 2 कॉपीज, सिमिलरली यहां पर क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज, क्रोमोसोम नंबर 2 की 2 कॉपीज। अब प्रोफेज से पहले जो सेल रहा होगा, ये तो जब डिवीजन के टाइम पे एंटर करा होगा, जो पेरेंट सेल रहा होगा उस पेरेंट सेल में भी आपको ऐसे ही देखने के लिए मिल रहा होगा, ये जो पेरेंट सेल में यहां पर ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, पेरेंट सेल में भी क्या रहा होगा, क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज और क्रोमोसोम नंबर 2 की 2 कॉपीज। ये तो जब ये डिवीजन में एंटर किया होगा तब इसने अपनी एक एक एक्स्ट्रा कॉपीज और बनाई होंगी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये जो 2 डॉटर सेल्स यहाँ पर बने हैं, दीज 2 डॉटर सेल्स, aren't they exactly similar to the parent cell? Yes or no? Yes, ma'am. Exactly similar? Yes, ma'am. ठीक है। अब मुझे बताओ, पेरेंट सेल का, पेरेंट सेल यहाँ पे क्या होगा, हैप्लॉइड कहलाएगा कि डिप्लॉइड कहलाएगा? हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज दिख रही हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज, क्रोमोसोम नंबर 2 की भी 2 कॉपीज हैं। पेरेंट सेल यहाँ पर क्या होगा, डिप्लॉइड होगा कि हैप्लॉइड होगा? बोलो। Diploid. डिप्लॉइड है, वेरी गुड आरुष, एंड एवरीवन एल्स? I'm diploid. डिप्लॉइड अर्णव, यस, लक्ष्य, हर्ष, रुद्र, अदिति, डिप्लॉइड, यस, ओके, अने डिप्लॉइड, यस। तो यहाँ पर पेरेंट सेल डिप्लॉइड था, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी थी, क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज थी, क्रोमोसोम नंबर 2 की 2 कॉपीज थी। अब यहाँ पर पेरेंट सेल डॉटर सेल देखो, डॉटर सेल 1 का प्लॉइडी लेवल क्या होगा बताओ, डॉटर सेल 1 बताओ मुझे, कौन बताएगा, रेज योर हैंड्स, कौन बताएगा डॉटर सेल 1 और डॉटर सेल 2 का क्या होगा? डॉटर सेल 1 क्या होगा, डिप्लॉइड होगा कि हैप्लॉइड होगा? सबके आंसर्स आने शुरू हो गए, अनय, अदिति, रुद्र, अर्श, ओके गुड, डिप्लॉइड, यस। अगेन 1 क्रोमोसोम की 2 कॉपीज, 2 क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज, 2n, ठीक है। फिर डॉटर सेल 2 कैसा होगा, डॉटर सेल 2 कैसा होगा, डिप्लॉइड की स्पेलिंग ठीक कर लो अर्श और आरुष, DIPLOID, अनय डिप्लॉइड की स्पेलिंग ठीक करो, DIPLOID, यस। रुद्र, ओके, डिप्लॉइड, DIPLOID, यस, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये भी डिप्लॉइड होगा, सो दैट्स व्हाई दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन।
जो पेरेंट सेल का प्लॉइडी लेवल था, प्लॉइडी मतलब कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, कितने एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, वही एग्जैक्टली प्लॉइडी लेवल किसका रहेगा, डॉटर सेल्स का। आई होप इज इट क्लियर, दिस इज टू माई बेस्ट कैपेबिलिटीज अभी आपके लेवल पे, बिकॉज ये चीजें हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। ये क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़े से इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। दिस इज टू माई बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज, मैं इतना सिंप्लीफाइड वे में समझा सकती थी। अगर आप लोग को फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल जो छोटी सी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी उनको ध्यान में रख लेना, बहुत ज्यादा जो है दिमाग पे जोर नहीं डालना है, इतना डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछेगा। दिस वॉज जस्ट फॉर योर ओन इंटरेस्ट कि आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज यू पीपल आर टेकिंग कोचिंग, ओके। नो, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एनसीईआरटी एट दिस लेवल, हाउएवर इन क्लास 11 दिस इज प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। यस, हेप्लॉइड का मतलब क्या होगा बच्चे, अने हेप्लॉइड सिंपली मींस यहाँ पर हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज थी। अगर एक हेप्लॉइड सेल में बता दूं ना, तो हेप्लॉइड सेल कैसा होगा, हेप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, सिंपल। ऐसी सिमिलरली और जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे, एडिशनल कॉपी नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब क्विकली आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज मियोसिस। यहां तक सबको क्लियर हो गया? आरुष, यस, आप इसको डेफिनेटली नोट्स में अपना लिखिए, समझिए, ठीक है। आपका जितना इस पे आप कैपेबिलिटी पे आप इसको समझ पा रहे हो उतना समझ लो। मैं कह रही हूँ डोंट टेक स्ट्रेस, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, बिकॉज एट दिस लेवल फ्रॉम दिस मच ऑफ इट वोंट बी आस्क्ड, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके रिलेटेड। सो दैट्स व्हाई वी हैव टॉट यू दिस कॉन्सेप्ट, प्लस इन कोचिंग क्लासेस एट 9th लेवल ऑल्सो हम ये इतना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। डन, चलिए नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। ये क्वेश्चन वैसे हमने पिछली क्लास में भी सॉल्व कर लिया था। लक्ष्य, नो आंसर्स इन द चैट बॉक्स। अने गुड, आरुष गुड, अने गुड, मैम बी। लक्ष्य तो मैं तुम्हें ब्लॉक करूंगी अब जल्दी से, माननी नहीं होती है Ma'am, लक्ष्य, what is बहुत this? बहुत शैतान है लक्ष्य। चलो जल्दी से करो, हाँ। Okay, good. Yes, so the correct answer is option number B, mitosis. Well done, everyone. Now let's move to the next part, which is meiosis. ठीक है, अब meiosis क्या है? सबसे बड़ी बात, जब हम माइटोसिस के बारे में बात करते हैं, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है। जो meiosis होता है, meiosis इज रिडक्शनल डिवीजन। meiosis कैसा है? रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। तो अगर दोनों के बीच में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बीच में, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, जो आपका माइटोसिस होता है वो किन तरह के सेल्स में होता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कहीं पर चोट लग जाती है, या जो आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी, वो माइटोसिस करते हैं। जबकि जो मियोसिस होता है, मियोसिस अकर्स ओनली at the time of formation of gametes, केवल और केवल जब गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी तब जो है मियोसिस होगा। अब अगर आप यहां पर, मैं हाथों हाथ माइटोसिस के भी लिख रही हूं ताकि अगर इनके बीच के डिफरेंसेस पूछ लिए जाए तो आप रेडी रहो। माइटोसिस कैसा हो गया? इक्वेशनल डिवीजन हो गया। और दूसरा, माइटोसिस कब होगा? ओनली इन दी somatic cells of the body, okay, for growth और for repair, ठीक है। जबकि मियोसिस कब होगा? ओनली एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये 2 पॉइंट्स तो हमने याद कर लिए। अब दूसरा, जो तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है कि माइटोसिस जो होता है वो अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो यहां पर जो डॉटर सेल है उससे डिप्लॉयड ही बनेगा। लेकिन यहां पर मियोसिस इज कॉल्ड एज एन रिडक्शनल डिवीजन। यहां पर डिप्लॉयड अगर पेरेंट सेल है, ठीक है, डिप्लॉयड पेरेंट है, तो यहां पर हेप्लॉयड डॉटर्स बनेंगी, हेप्लॉयड डॉटर्स बनेंगी, ठीक है। यहां पर डिप्लॉयड डॉटर्स ही बनती हैं।
और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर एक पेरेंट सेल के डिवीजन से 2 डॉटर सेल्स बन रही थी, यहां पर एक पेरेंट सेल के डिवीजन से टोटल 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। आपके लेवल पे जो पूछा जाएगा वो माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंसेस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना। ठीक है, सबने लिख लिया? अदिति ने लिख लिया? वेरी गुड अदिति। Yes, ma'am. अर्णव ने भी लिख लिया। बाकी सब लिखो जल्दी से और मुझे बोलो लिख लिया। लिखो लिखो रुद्र, टेक योर टाइम। डन? जल्दी बोलो बाकी सब। मैम राइटिंग। जल्दी जल्दी लिखो। आरुष क्या डाउट है बच्चे? अनम्यूट करके पूछो, अभी बताऊंगी मैं मियोसिस के बारे में। मैम सो जो आपने पहले वाला पॉइंट दिया था रिडक्शनल डिवीजन, तो फिर तो वो सेम हुआ हैप्लॉइड से, बिकॉज हैप्लॉइड भी तो आपने रिडक्शन ही बताया था। क्या नहीं बताया था? मैम हैप्लॉइड की डेफिनेशन रिपीट करना। हेप्लॉइड की डेफिनेशन ये है दैट इट, हेप्लॉइड का मतलब क्या है कि हर क्रोमोसोम की केवल एक ही कॉपी प्रेजेंट होगी। देयर वुड बी 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, whereas diploid means that there would be 2 copies present of each chromosome. ओके Simple. मैम। ठीक है। मियोसिस इज हेप्लॉइड ना का मतलब क्या होता है बच्चे? मियोसिस इज हेप्लॉइड मतलब डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बनेगा। हमेशा पेरेंट सेल जो इनिशियल में आप लोगे मियोसिस में वो डिप्लॉइड रहेगा, उससे हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाओगे। ठीक है, ओके आने? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रही हूं मैं। अब हम देखते हैं मियोसिस एग्जैक्टली होता कैसे है। ठीक है, अब मियोसिस के टाइम, जो मियोसिस होता है, मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है। कौन सी 2 स्टेजेस में होता है? तो मियोसिस की 2 स्टेजेस होती हैं, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 2 जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है टू माइटोसिस। ठीक है, अब चलो अच्छा इस पॉइंट को भी हटाओ। सबसे पहले मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 2 पार्ट्स में हो रहा है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के टाइम पे भी सेम स्टेजेस चलेंगी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। फिर जो सेल मियोसिस 1 कर लेगा वही सेल दोबारा एंटर करेगा मियोसिस 2 में, और यहां पर होगी फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। यानी कि यहां पर अगर कोई भी पेरेंट सेल को 4 डॉटर सेल्स बनानी है तो उससे पहले मियोसिस 1 करना पड़ेगा और फिर मियोसिस 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले मियोसिस 1 में क्या हो रहा होता है, मियोसिस 1 की स्टेजेस देखते हैं। तो यहां पर देखो, अब मैं आपको सीधे ये जो है न्यूक्लियस दिखा रही हूं और ये आपके पास सेल प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर देखो, अब जो पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल में यहां पर ड्रॉ कर रही हूं ऊपर, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज हैं, क्रोमोसोम नंबर 2 की भी 2 कॉपीज हैं। अभी पूरे 23 क्रोमोसोम्स की मैं नहीं दिखा रही हूँ। जब ये एंटर कर रहा होगा सेल डिवीजन के टाइम पे, तो सेल डिवीजन के टाइम पे अब इसने अपनी एडिशनल कॉपीज और बना ली होंगी। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा है माइटोसिस में, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर भी आएगी। इसने अपनी और एडिशनल कॉपीज इस तरीके से बना ली होंगी, लाइकवाइज दिस। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, प्रोफेज 1 में एंटर किया, तो प्रोफेज 1 में एग्जैक्टली ये सेम सेल ही एंटर करेगा। ये वाला जो सेल है ये एग्जैक्टली सेम सेल एंटर कर रहा है प्रोफेज 1 में। तो प्रोफेज 1 में अब सबसे पहले क्या हुआ, प्रोफेज 1 में एंटर करने के बाद ये जो आपका
न्यूक्लियस था, ठीक है। ये न्यूक्लियस धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर जाता है। न्यूक्लियस क्या हो गया, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करना शुरू हो गया, और अब जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये इस तरीके से आपके साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम चीज हो रही है यहाँ पर जो हमने बिल्कुल एग्जैक्टली माइटोसिस में पढ़ी थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करना शुरू हो गई। अब सेकेंड स्टेज में क्या होगा, वापस से मेटाफेज टू में क्या होगा, अब ये क्रोमोसोम्स वापस से अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, ऑन टू द इक्वेटोरियल प्लेट। लेकिन अब जब ये अलाइन होते हैं ना सबसे पहले, ठीक है, तो अब क्या होता है, जब आप पहले वाला रिकॉल करोगे तो वहां पे मैंने क्रोमोसोम कैसे दिखाए थे, ये ऐसे दिखाए थे मैंने आपको अलाइंड। पहले वाला दिखा रही हूँ, अभी ड्रॉ मत करना, एक मिनट रुकना। पहले वाले में हम कैसे ड्रॉ करके दिखा रहे थे, ऐसे अलाइन कर रहे थे, है ना। अब की बार ऐसे नहीं अलाइन होते, सबसे पहले अलाइन कैसे होते हैं ये, अब इसमें क्रोमोसोम नंबर जो आपका 1 है, ठीक है, लाइकवाइज दिस, ये क्रोमोसोम नंबर 1 और ये क्रोमोसोम नंबर 2 ऐसे अलाइंड होते हैं, और ये सेंट्रियोल से अब कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे, लाइकवाइज दिस, ठीक है। ये सेंट्रियोल्स थे, ये इस तरीके से कुछ जुड़ेंगे। तो अब की बारी जब एनाफेज होगा, तो एनाफेज के टाइम पे क्या होगा बच्चों, एनाफेज के टाइम पे फाइनली अब इनका मूवमेंट कैसा होगा, ठीक है, अब इनका मूवमेंट कैसा होगा, ये थी प्रोफेज 1 स्टेज, ये थी मेटाफेज 1 स्टेज। अब एनाफेज 1 के टाइम पे पूरा का पूरा जो ये सेट है, यानी ये वाला सेट पूरा का पूरा, ये एक डॉटर सेल के पास जाएगा और दूसरा पूरा दूसरे डॉटर सेल के पास आएगा। तो अब यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 और ये क्रोमोसोम नंबर 2, सिमिलरली क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, और इनकी ग्रीन कॉपीज भी मैं यहाँ पर पूरी पूरी दिखा देती हूँ, लाइकवाइज दिस, ठीक है। और अब इनके आसपास वापस से इस तरीके से धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, ऐसे होगा ये। तो यहां पर मैं वापस से अब सेंट्रियोल्स दिखा रही हूं, लाइकवाइज दिस, ठीक है, ये सेंट्रियोल्स थे, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया। तो व्हाट हैपेंस, हम ये बोलते हैं कि जब फर्स्ट एनाफेज होता है उसमें सेपरेशन होता है, किसका, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। केवल ये टर्म ध्यान में रख लेना और कुछ मत ध्यान में रखना, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग मियोसिस 1 सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है, नेक्स्ट फाइनल स्टेज में क्या होगा, अब लास्ट टीलोफेज स्टेज हम इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। अब टीलोफेजिक स्टेज में लास्ट में क्या आ गया, यहां पर आपके पास एक न्यूक्लियस बन गया, ये दूसरा न्यूक्लियस बन गया, यहां पर ये क्रोमोसोम नंबर 1 और 2, क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2, और इनकी एक एक एडिशनल कॉपी भी इनके साथ यहीं पर ही प्रेजेंट है, लाइकवाइज दिस, ठीक है। और ये धीरे धीरे सेल इस तरीके से 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई डॉटर सेल 1 और ये हो गया डॉटर सेल 2, ठीक है। यहां पर ड्यूरिंग मियोसिस 1, ठीक है, ये क्या हो गया, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। अब ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं, ये दोनों डॉटर सेल्स अब एंटर करेंगी किसमें, प्रोफेज 2 में एंटर करेंगी। किस में एंटर करेंगी, प्रोफेज 2 में एंटर करेगी, ठीक है। तो अब यहां पर फाइनली क्या होगा, सबको समझ में आ गया यहां तक, या ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, एवरीवन, हैव यू अंडरस्टूड दिस और इज इट गेटिंग टू कॉम्प्लेक्स फॉर यू पीपल? No, ma'am. Crystal clear. Everyone else? अर्श, रुद्र, अदिति, अने को क्लियर है, अर्णव, are you people getting it or is it becoming too complex for you? If it becomes too complex for you, please let me know this, okay? Now finally what will happen, अब डॉटर सेल 1 एंटर कर रही है, ठीक है। अब प्रोफेज 1 की स्टेज में ड्रॉ नहीं करके दिखा रही हूं क्योंकि ये ऑब्वियसली जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डॉटर सेल 1 की हट जाएगी। मैं डायरेक्टली मियोसिस 2
मेटाफेजिक 2 स्टेज पे आ रही हूँ, ठीक है। मेटाफेज 2 स्टेज में क्या होगा, अब देखो ये एक डॉटर सेल यहाँ पर था, ठीक है, और ये था दूसरा डॉटर, थोड़ा छोटा बना देती हूँ यार, स्पेस कम पड़ जाएगा। चलो ये डॉटर सेल 1 दिखा रही हूँ, ये डॉटर सेल 2 दिखा रही हूँ, ठीक है। दिस इज डॉटर सेल 1, दिस इज डॉटर सेल 2, ठीक है। अब यहाँ पर डॉटर सेल 1 के अंदर भी वापस से सेंट्रियोल्स आएंगे अपोजिट एंड पे, ठीक है। डॉटर सेल 2 के अंदर भी वापस से सेंट्रियोल्स आ गए, ठीक है। और अब यहाँ पर अब आप इन दोनों का सेपरेशन और सिमिलरली यहाँ पर दिखाओगे, तो अब मेटाफेजिक प्लेट पे कैसे अटैचमेंट होगा, ये देखो ऐसे ही अटैचमेंट होगा ना। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये 2, ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये 2, ठीक है। और इस तरीके से अटैचमेंट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर भी मार्क कर देती हूँ 1 2 1 2, है ना, 1 2 1 2, ताकि तुम लोग कहीं पर भी कंफ्यूजन में ना रहो, ठीक है। ये डॉटर सेल्स, दोनों डॉटर सेल्स मेटाफेजिक 2 स्टेज में इस तरीके से एंटर करेंगी। फाइनली अब एनाफेजिक स्टेज ड्रॉ कर देते हैं इनकी। एनाफेजिक स्टेज में अब क्या होगा, अब डॉटर सेल 1 के दो एंड्स पे क्या पहुंच गए, यहाँ पर एक तरफ तो आ गया रेड वाला क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1, और दूसरा आ गया क्रोमोसोम नंबर 2। सिमिलरली डॉटर सेल 1, इधर डॉटर सेल 1 के दूसरे एंड पे ये ग्रीन वाले क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है। तो ये हो गई इनकी एनाफेजिक स्टेज। सिमिलरली ये वाला जो दो डॉटर, ये वाला जो है अब इसका देखते हैं, ये तो इसका डिवीजन बनाया, अब इसका डिवीजन देखते हैं। मैं तुम लोग बीच में आज इतने शांत हो ना, कोई डाउट भी नहीं पूछ रहे हो, मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ा रही हूँ कि क्लास सो गई है, कि समझ में भी आ रहा है तुम लोग को, नहीं कहीं कॉम्प्लेक्स ना हो रहा हो। मेरे को डाउट जा रहा है आज तुम लोगों की हालत देख के, समझ में आ रहा है ना भाई, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया है तुम लोगों के लिए। कभी कहो मैम कहाँ पढ़ा दिया आज हमें। अरे भाई बाकी भी जवाब दे लो, ये आने और आरुष के अलावा। समझ में आ भी रहा है कि सो गए हो आज क्लास में। नो रुद्र को मैम। नहीं रुद्र को नहीं समझ में आ रहा, रुद्र नहीं समझ में आ रहा। इतनी शांत क्लास तो मैंने कभी भी नहीं देखी है, वो भी ऑनलाइन, इतने शांत बच्चे। चलो ठीक है। अब सिमिलरली देखो डॉटर सेल 2 का भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, 1 2, ठीक है। एक तो ये कलर चेंज बहुत बारी करना पड़ रहा है, जितनी मेहनत मैं यहाँ बोर्ड पे कर रही हूँ ना, उतनी मेहनत तुम लोग भी अपनी नोटबुक्स में कर लो, कहीं ऐसा ना हो वहां कुछ भी बना के आ जाओ, ठीक है। अब बताओ भाई, सेपरेशन हो गया क्रोमोसोम्स का। अब फाइनली यस ये वाले से दो डॉटर सेल्स बनेंगे, ये वाले से दो डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। अब बताओ मुझे फाइनली मैं इसको इस तरीके से दिखा दूं, सिंपली डायरेक्ट एनाफेज 2 स्टेज मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये थी मेटाफेज 2 स्टेज, ये थी एनाफेज 2 स्टेज, ठीक है। अब फाइनली मैं आपको दिखा रही हूं क्या, टीलोफेज 2 के बाद अब फाइनली दो डॉटर सेल्स कैसे बनेंगे, एक डॉटर सेल ये, एक डॉटर सेल ये, एक डॉटर सेल ये, एक डॉटर सेल यहां से बनेगा, ठीक है। अब अगर इनका न्यूक्लियस अंदर से देखेंगे तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 2 की एक कॉपी। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे दूसरे वाले में, तो मैं ग्रीन से दिखाऊंगी, ये वाली दोनों कॉपीज इसमें चली जाएंगी, है ना, इसमें। तो यहाँ पर मैं ग्रीन से दिखा दूंगी, एक काम करती हूँ पहले यहाँ पर भी दिखा देती हूँ रेड से ही, कम बारी बदलना पड़ेगा मुझे। वन एंड टू ऐसे ही होगा, हाँ जी, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, यस मैम, इजी। है ना, डन, ठीक है। तो अब फाइनली क्या हो गया, अब यहाँ पे कितनी डॉटर सेल्स बनी, एक पेरेंट सेल से तुमने शुरू किया था, टोटल कितनी डॉटर सेल्स बनी, डॉटर सेल 1, डॉटर फोर। सेल 2, डॉटर सेल 3 और डॉटर सेल
4, यानी कि यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बनी। अब अगेन वापस से उठा करके देखते हैं, पेरेंट सेल का प्लॉइडी लेवल कितना था? हर एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज प्रेजेंट है यहाँ पर? अनम्यूट करो सब अपने आप को फटाफट से, अनम्यूट करो, क्यूमुलेटिव 2। आंसर दो। हाँ वेरी गुड, बाकी सब भी बोलो, अनम्यूट करो सब अपने आप को जल्दी से। एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ, एवरीवन क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ। बोलो पेरेंट सेल का प्लॉइडी लेवल कितना होगा? अरे हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? 1 की 2 है, 2 की 2 है, प्लॉइडी लेवल 2n। ठीक है, हाँ जी, हाँ लक्ष्य बोलो। ठीक है, अब यहाँ पर चलो डॉटर सेल्स का प्लॉइडी लेवल बताओ। इस वाली डॉटर सेल का प्लॉइडी लेवल कितना हुआ? हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी प्रेजेंट है? बोलो बोलो भाई सब लोग जल्दी से। हर क्रोमोसोम की 23, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। उस 23 में से एक जो फर्स्ट क्रोमोसोम होगा उसकी कितनी कॉपी यहाँ पर दिखा रखी है? सेकंड क्रोमोसोम की कितनी कॉपी यहाँ पे दिखा रखी है? एक एक ही दिखा रखी है। लक्ष्य समझ में आ रहा है? लक्ष्य, everyone unmute yourself or say something on the chat box. It's very easy. Okay आरुष, got it. Everyone else, अरे बाकी भी जवाब दे लो भाई। अर्णव, अर्श, रुद्र, अदिति, अनय, लक्ष्य। सो गई क्लास, गई 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 गई, सब सो गए आज क्लास में। मुझे तो यही लग रहा है आज सब सो गए हो क्लास में। नो अनय नो, अनय नो नो नो, ये केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बार बार रिपीटेटिवली बात बोल रही हूँ। हाँ, ये कौन लाफ कर रहा है? अनय ऐसे कौन, किसने लाफ किया आने की बात पे? जल्दी से हटाओ। इट इज 20 पर इजी। अच्छा सुनो, अब यहाँ पे प्लॉइडी लेवल बोलो, बाकी की बातें तो तुम लोग कर नहीं रहे हो। प्लॉइडी लेवल सुन लो, यहाँ पे हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी प्रेजेंट है। क्रोमोसोम नंबर 1 एक था, क्रोमोसोम नंबर 2 एक है। सिमिलरली डॉटर सेल 2 में देखो क्रोमोसोम नंबर 1 एक है, क्रोमोसोम नंबर 2 एक है। सिमिलरली डॉटर सेल 3 में देखो क्रोमोसोम नंबर 1 एक, क्रोमोसोम नंबर 2 दो, मतलब एक। और यहाँ पर इस तरीके से डॉटर सेल 4 में, तो यहाँ पर एक 2n पेरेंट से, एक डिप्लॉयड पेरेंट से 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। इसीलिए क्योंकि 2n से n में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं? रिडक्शनल डिवीजन। आरुष क्यों हंसे तुम आने की बात पे? वेरी बैड। मैम हंसा नहीं था, राइट टॉक। हाँ चलो ठीक है भाई। क्लास में आज कोई, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम लोग सो गए हो आज क्लास में। हाँ, आरुष और अने की प्रेजेंस मुझे दिख रही है। लक्ष्य, लक्ष्य अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? आ गया? यस। अच्छा अर्श, अर्श अनम्यूट योरसेल्फ। समझ में आया? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, रुद्र अनम्यूट योरसेल्फ, अदिति अनम्यूट योरसेल्फ। रुद्र समझ में आया बच्चे? यस मैम। अदिति समझ में आया? यस मैम, थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दैट वाज जेन्युइन आंसर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, वो जो 3-4 लाइनें उसमें लिखी हुई है वो तो तुम्हें डेफिनेटली समझ में आ जाएंगी। इतनी जो मैंने यहाँ पे सारी महाभारत तुम्हें समझाई है, वो 2-3 लाइनें अब समझ में आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बस वो समझ लो। और जो मैंने माइटोसिस और मियोसिस के बीच के डिफरेंसेस बताए हैं उन्हें लिख लेना, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही पूछा जाता है। ठीक है, अर्नव अनम्यूट योरसेल्फ। अर्नव, अर्नव सो गया। अर्नव गया आज क्लास से, अर्नव क्लास ऑन करके चला गया है कहीं पे। तो भी अर्नव शायद कराटे सीखने चला गया है आज। यू नो अर्नव हैज प्लेड कराटे एट रिप्रेजेंटेड इन कराटे एट इंडिया लेवल। दैट्स सो कमेंडेबल। नो ट्रिप टू मनाली। ओके चलो
नाउ एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, मैं थक गई हूँ बोलते बोलते. अब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो. और लक्ष्य आंसर नहीं देना इधर अनम्यूट करके. नो, कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत शैतान होते हैं, और ये लक्ष्य उनमें से एक है. कॉन्ग्रेचुलेशन. ओके, हाँ जी, आ गए सब, ए पर आ गए. अच्छा 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 अच्छा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट. ओके, यस, वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना? बस इतना ही तुम्हें क्रक समझ में आ जाए. पूरी राम गाथा मैंने तुम्हें इसलिए समझाई थी, वो सिंपल सी राम गाथा इसलिए सिंपल तो नहीं थी, कॉम्प्लेक्स थी, ताकि तुम लोग समझ पाओ. ठीक है, जिसको समझ में आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया कोई बात नहीं, परेशान मत होना. ये क्वेश्चन सॉल्व करके लेके जा रहे हो उतना ही बहुत है. ठीक है अदिति, ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं आफ्टर ऑल द इलेबोरेशन वी हैव टॉक्ड, है ना? ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं ना अदिति? हो पा रहे हैं? ठीक है ना, बस उतना ही चाहिए मुझे. हाँ जी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. वेल डन एवरीवन, वेल डन, वेल डन. हाँ आरुष. चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.